Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you? Hope you are doing fine by the grace of God Almighty and taking your video classes regularly. Girls, we have done our grammar work previously. It was about lesson number 9 and about question tags. Now let's see what have you done in your book. Yes, girls. On your page number 46, you were given the task to complete this exercise A. Tally your work with mine. Hopefully, you have done it correctly. And there was exercise B on the next page, page number 47. Your answer would probably be the same as I have done it. Alright. Now, go back. Now you have to look to your exercise A on page number 46. बच्चों, आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक पर भी करने के लिए, नोटबुक पर भी करने के लिए दी गई थी ना। बिल्कुल इसी तरह आपने एक्सरसाइज बी जो पेज नंबर 47 पर है, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक पर करनी है। अब मैं आपको वो एक्सरसाइज दिखाती हूँ। आपको सेकेंड टर्म का कॉलम सेक्शन बनाना है, जहाँ पर आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे सेकेंड टर्म की। देन यू हैव टू राइट द सेशन 2020 to 2021 एंड ऑन द नेक्स्ट पेज you must have done this exercise. Tally your work with mine. You were given this task. I hope you would have find it very interesting because these sentences, these statements were really very easy. अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज बी जो पेज नंबर 47 पे आपने की थी इन योर बुक, बिल्कुल उसकी इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए एक आपको एक्सरसाइज तैयार की गई है आपके लिए, जिसमें सिर्फ 5 सेंटेंसेस हैं। इनको देख लीजिए, इनको भी आपको अपनी नोटबुक के ऊपर करना होगा। ठीक है, आई होप यू विल फाइंड नो डिफिकल्टी एट ऑल। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यस गर्ल्स, इन today's lesson, we are going to learn how to answer questions with a short reply. Sometimes in spoken English, when somebody asks you some questions, we normally give them answers in yes and no. Usually when some questions that start with auxiliary verbs, you very well know this, that when the questions start with auxiliary verbs, your answer should come in yes or no. राइट, यानी जब आपसे ऑक्सिलरी वर्ब, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है, जब ऑक्सिलरी वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप उसका आंसर येस और नो में करते हैं। ये याद आया आपको? प्रीवियसली आपने ये काम किया हुआ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ येस और नो में आंसर दे देना, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ये सही नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर यू थर्स्टी और आप इसका जवाब देते हैं येस, और अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू वांट समथिंग और आप कहते हैं येस, या अगर आपका नेगेटिव में आंसर हो नो, तो सिर्फ येस और नो कह देने से आंसर आपका अप्रोप्रिएट नहीं हो जाता। इट डजंट लुक पोलाइट, इट डजंट साउंड पोलाइट। So to be more polite, what we usually do is we add a little bit more to the answer, okay, to make it like a sentence. हम उसको थोड़ा सा उसमें एडिशन करते हैं, कुछ एक दो वर्ड्स की, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर सेंटेंस लगता है। ठीक है, so let's see how we can answer questions in short replies in a correct way. I have written some examples for you on the board, so let's turn toward our boards. Yes girls, you can see what short replies are. Short replies or answers are the shortest sentences which have only a subject and the auxiliary verb. ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल मुख्तसर से जवाबात होते हैं, and they are most usual form of answer to verbal questions, क्योंकि ये हम अपनी आमतौर पे conversation में इस्तेमाल करते हैं। Alright, now you should look at the structure for short replies. Remember that you can answer in affirmative as well as in negative. आपका जवाब affirmative में भी हो सकता है, आपका जवाब negative में भी हो सकता है, it's up to you, alright। और इसमें एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसमें भी रूल्स उसी तरह फॉलो किए जाएंगे जिस तरह से क्वेश्चन टैग्स में किए गए थे। याद है क्वेश्चन टैग्स के जो भी आपने रूल्स याद किए थे कि इसमें ऑलवेज यूज अ प्रोनाउन, नेवर अ नाउन, auxiliary verbs are used, the tense remains the same, और फिर उसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रहे थे। याद है आपको? कॉन्ट्रैक्शंस पूरे आपको समझाए गए थे। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं
कि अगर आपका आंसर जो है वो अफर्मेटिव में है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट येस, देन यू हैव टू यूज अ प्रोनाउन एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब, ऑलराइट, एंड देन पुट फुल स्टॉप ओवर हियर. Then if you want to answer in negative, your answer should be no, then comes pronoun and the auxiliary verb plus not. और यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि जब नेगेटिव बनाते हैं आप स्टेटमेंट अपना आंसर, तो उस पर आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करनी है, ऑलराइट. यस, अब अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं. Does Sana come with you? ऑलराइट, does Sana come with you? Your answer could be yes, she does. और it could be no, she doesn't. ठीक है, क्या इसका आंसर है? yes, she does. अब यहाँ पे आप ये बात नोट करें, जैसे कि आपको बताया गया था कि नाउन की जगह आपको प्रोनाउन यूज़ करना है. तो सना जो है वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन. फीमेल है या फेमिनिन है ये, इसके लिए आप she इस्तेमाल करेंगी. yes, she does. और नेगेटिव में करना होगा आपको इसका रिप्लाई, तो आप कहेंगे नो, शी डजंट. अब यहाँ पे देखिए डजंट जो है वो एक्चुअली डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जिसको आपने डजंट की सूरत में लिखा है, ऑलराइट. अब यहाँ पर आप इसको स्ट्रक्चर के साथ में मैच करके देख सकती हैं. आपका अफर्मेटिव में आंसर था तो येस should come yes, all right, and there should be written a pronoun should be written over here, so she is a pronoun that is written over here. Then your auxiliary according to your subject is singular, it comes over here, all right. And in the negative you can see that no is the first word that is written over here, then comes the pronoun according to your structure, then come the auxiliary verb not in its contracted form, all right. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. बहुत आसान है और सबसे बढ़कर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आइए. डिड ही अराइव इन टाइम? डिड ही अराइव इन टाइम? व्हाट कुड बी योर आंसर? कैन यू टेल मी? यस, ही डिड. नो, ही डिडंट. ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसमें क्या चीज़ आपने नोट की है, क्या इसमें हमने इस बार किस रूल को हमने अपने सामने रखा है. आप देख रही हैं कि यहाँ पर टेंस पास्ट टेंस यूज हुआ है, ठीक है. तो इसके आंसर में भी हमने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है. ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है कि टेंस शुड ऑलवेज बी द सेम, ठीक है. तो यहाँ पर भी आपने टेंस का ख्याल रखना है, ऑलराइट. पहले आपने प्रेजेंट टेंस किया था तो उसका आंसर प्रेजेंट में था. अब आपके पास नेगेटिव है तो उसका आंसर भी आप इसका पास्ट टेंस है, तो अब इसका आंसर भी आपका पास्ट टेंस में होगा, ऑलराइट. लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट एग्जांपल. आर दे कॉलिंग मी? यस दे आर. नो दे आर्ट. अब यहाँ पर आपका आंसर जब यस में है और फिर उसके बाद आपने प्रोनाउन दे लगाया है और आर आपके पास ऑक्सिलरी है, ठीक है. तो इसको आपने यहाँ पे आर लगाया है, यस. और अगर आपका नेगेटिव आंसर है तो नो दे आर्ट. आर्ट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ आर नॉट, ऑलराइट. सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट एग्जांपल. वी हैव यू गॉट इंजरीज? अगर आप पॉजिटिव आंसर देना चाह रहे हैं, अफर्मेटिव में आंसर देना चाह रहे हैं तो आपका होगा येस आई हैव, और अगर नेगेटिव में देना चाह रही हैं तो होगा नो आई हैवंट, ऑलराइट. The next example is will Ali drive the car? All right, will Ali drive the car? Your positive answer would be yes, he will. Or if you want to answer in negative, your reply would be no, he won't. You know very well that won't is used for will not. This is the contracted form of will not. All right. अब आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं गर्ल्स. मॉडल ऑक्सिलरी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी किस तरह बनाई जाती है आपको बताई जा चुकी है. शुड आई बाय मैंगोज? अगर आपको पॉजिटिव या अफर्मेटिव आंसर देना है यस यू शुड, और अगर नेगेटिव में देना है योर रिप्लाई वुड बी नो यू शुडंट. कैन शी क्लाइंब अ ट्री? If you want to answer in affirmative, you can say yes she can, or if you want to answer in negative, you should reply no she can't. All right. Now let's move to your last example over here. Must they recite the poem? Must they recite the poem? Likewise, if you want to say in affirmative, you will say yes they must, and if you want to reply in negative, you should say no they mustn't.
Okay, mustn't is the short form of must not. Yes girls, hopefully you have understood this topic very well and you will not find any difficulty at all. Now look at your book, we'll see what we have for in your book for you. Now girls, on page number 47 you have exercise C that reads, give short replies of the following. A in affirmative, B in negative. अब आपको यहाँ पर भी आंसर्स जो हैं वो पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव में या फिर नेगेटिव में देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव दे ऑफर्ड ज़ोहर प्रेयर. हैव दे ऑफर्ड ज़ोहर प्रेयर्स. आंसर इसका क्या होगा? आपको आ रहा है? शाबाश. पहले आपको अफर्मेटिव में देना है यस, फिर उसके बाद प्रोनाउन यूज़ करना है आपने. दे है आपके पास प्रोनाउन, यस दे, और ऑक्सिलरी क्या है आपके पास? हैव. ऑलराइट, यस दे हैव, देन यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. अब ये बात याद रखनी है आपको कि यू मस्ट नॉट रिपीट द होल क्वेश्चन वंस अगेन. ओके, यस दे हैव ऑफर्ड ज़ोहर प्रेयर, ये पूरा इस तरह से नहीं करना. ठीक है, तरीका क्या है? शॉर्ट होना चाहिए जिसमें आपके पास यस और नो या फिर आपके पास प्रोनाउन और उसके साथ आपका ऑक्सिलरी होगा. एंड देन आपको जो नेगेटिव आप इसको बनाएंगे, नेगेटिव में आप क्या बनाएंगे? नो दे हैवंट. ऑलराइट, इस तरह से ये आपका आंसर बन जाएगा और ये जो कि शॉर्ट रिप्लाई है. उसके बाद अगली एग्जांपल देख लीजिए. आपकी सेकंड एग्जांपल है, क्वेश्चन है, डू दे लाफ एट बेगर्स. तो इसका आंसर क्या है अफर्मेटिव में? येस दे डू, और नेगेटिव में नो दे डोंट. ऑलराइट, उसके बाद 3, 4, 5 क्वेश्चंस आंसर आप खुद कीजिए. और मैंने यहाँ पर एक और आपके लिए एग्जांपल कर दी है. डज दिस एप्पल पाई लुक यमी? येस इट डज. अब आप मुझे बताइए ये मैंने इट कहाँ से लगाया है? यू शुड नो दैट एप्पल इज़ अ थर्ड, कैन बी यूज एज अ थर्ड पर्सन. ठीक है, इसके लिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करेंगे जो कि सिंगुलर होगा, और फिर इट है वो, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन इट यूज़ किया है. ऑलराइट, येस इट डज. और नेगेटिव में इसका आंसर अगर आप देना चाहें तो वो किस तरह से बनेगा? नो इट डजंट. ऑलराइट, सेम वे यू हैव टू डू द होल एक्सरसाइज number 7, 8, 9 and 10. Alright, these the exercises girls are very interesting and you will enjoy it. I know that you will enjoy it and enjoy doing it. Alright girls, इसके अलावा आपको नोटबुक पर भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, give short replies of the following in affirmative and negative. These are only 5 sentences and very easy to do so. Now look at your homework on the board. Yes girls, this is your homework for today, that you have to do page number 47 and page number 48, exercise C that was given over there on your book, and then you have to do practice exercise in your notebook. Alright girls, inshallah we will meet in our next class. Till then, stay safe, stay home. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.